لیاقت خان ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ، اس وقت پے در پے خوشخبریاں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے آ رہی ہیں. بشریٰ بی بی کی رہائی کی صورت میں، اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظوری کی صورت میں، یہ کیا ہوا اچانک سے ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی آپ لوگوں کے حق میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. کاش ایسے ہی ہوتا کہ صرف اچھی خبریں آ رہی ہوتی، لیکن اب تک خان صاحب کے جو حالات پچھلے 20 دن سے ہیں، جس طرح ان کو رکھا گیا ہے، تو 20 دن کا ازالہ کون کرے گا. الحمدللہ ان کی اہلیہ فارغ کر دی ہے. آج انشاءاللہ شام کو ان کی بہنیں بھی گھر آ جائیں گی. ہماری یہی امید ہے کیونکہ ان کا اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا تھا. جیلم تو ذرا لمبا پروسیس ہے، لیکن آج ہمارے 2 MP صاحبان لیاقت خان اور دوسرے انور زیب صاحب، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. سمجھ نہیں آتی کس کرائم میں کیا ہے. ساتھ میں ہمارے بندے جن کو سب کو ضمانت مل چکی تھی پولیس کے باشندے ریسکیو 1122 کے TMA کے، ان کو دوبارہ ڈال دیا دہشت گردی میں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گیم کھیل کیا رہے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیں، دباؤ کھانے والا نہ عمران خان ہے نہ اس کی ٹیم. ان کی بہنوں کو دیکھے، بے گناہ انوسنٹ خواتین پچھلے 20 دنوں سے مجھے تو نہیں یاد کہ کس کرائم میں ہو گئی تھی. نمبر 20 سے بھی زیادہ لوگ ہیں. 22 دن ہو گئے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں فون تھا، نہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی، اور ان کو لے کے جن کے پاس گولہ بارود ہے اور وہ اسمبلی پہ گرانے لگی تھی. تو معذرت کے ساتھ یہ میں تلف بات کرنے لگی ہوں. عقل کے اندھے تو ہیں ہی ہے، بٹ آپ مطلب ویژن پہ بھی اندھے ہو گئے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ 2 کم سن خواتین ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ جاکر خان، آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل. یہ جھوٹے. ہم اب صرف انتظار کر رہے ہیں اپنے خان کا. انشاءاللہ وہ آئے گا، خیر سے آئے گا، ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ ڈرامے کرتے ہیں. دیکھیں، خان کی بیوی بھی گھریلو خاتون، شکر ہے ان کو چھوڑ دیا، لیکن وہ پارٹی کو تو نہیں لیڈ کر سکتی. خان کی بہنیں اللہ ان کو 100 سال زندگی دیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے پارٹی کو لیڈ کریں گے. وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کا میسج ورکرز تک پہنچ جاتا تھا. اگر آپ کہتے سمجھانی کا جلسہ 8 کو جو تھا، اس میں کتنی سوال ہوتے تھے تشویش کی. جی پھر ہوگا، واپس چل جائیں گے. آپ نے بہت سارے سوال پوچھے تھے. آپ نے بھی، میں نے یہی کہا کہ آپا نے بول دیا، حلیمہ خان صاحبہ نے، کہ اب کوئی جلسہ کینسل نہیں ہوگا. ہم ہر جگہ پہنچیں گے، اور وہ الحمدللہ ہوگی. سو مجھے یہ لگتا ہے یہ صرف گیمز کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. 10 کو آج اٹھا لیا، 8 کو پرسوں چھوڑ دیا، 3 کو اٹھا لیا. یہ ان کو تنگ کرنے کا. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ، گزشتہ روز بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی. بشریٰ بی بی صاحبہ رہا ہوتی ہیں، بنی گالہ جاتی ہیں. کچھ ہی لمحوں بعد وہ بنی گالہ سے نکل کر خبر ہی آتی ہے کہ وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. شوکت خانم ہسپتال میں ان کا علاج معالجہ ہوگا. لیکن کچھ ہی لمحوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ KP ہاؤس پہنچ چکی ہیں. یہ ٹوسٹ ہم نے دیکھا گزشتہ روز. کیا وجہ بنی ہے KP ہاؤس جانے کی بنی گالہ سے؟ دیکھیں جی، پنجاب کی حکومت اس وقت ایک نہایت ہی کیا بتاؤں، ہر کسی اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کروایا، ضلع شاہ کو قتل کروایا، ان سب کسی اچھائی کی امید مت رکھی. عورتوں کو مارتے ہیں، بچیوں کو مارتے ہیں، معذوروں کو مارتے ہیں. سو اس لیے بہتر ہے کہ وہ فی الحال KP میں رہ جائے. ہماری واحد صوبائی حکومت ہے. انشاءاللہ جب خان صاحب خیر سے آئیں گے پھر وہ جہاں بھی جائیں. اور ڈیل کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید بشریٰ بی بی صاحبہ نے کوئی ڈیل کی ہے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اب پارٹی کو سنبھالنے جا رہی ہے خان صاحب کے ایبسنس میں. وہ جیل میں ہے. کتنی صداقت ان خبروں میں؟ مجھے جی ڈائریکٹ تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن کل عمیر نیازی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنی فیملی کو اپنی پارٹی سے دور رکھا ہے، چاہے ان کی اہلیاں چاہے ان کی بہنیں ہوں. سو نیچرلی جس طرح حلیمہ با اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ میسج خان کو ہمیں جیل سے پہنچا دیتی تھی، تو شاید اس طرح کا ان کا بھی کوئی رول ہو. 100 بسم اللہ، اس میں کیا برائی ہے. لیکن جب تک خان خود اناؤنس نہیں کریں گے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں موروثیت آ جائے، تو ماننا ذرا مشکل ہے. میڈم، فیصل واڈا 2 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں پاور بلاک کا، دوسرا کو کہہ رہے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ خود انہوں نے کہا کہ ایک تو عمران خان سے ان کی ملاقاتیں تھوڑی سی رکوائی جائیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر ہیں. ان میں کوئی مواصلات آپ کو نظر آتی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمران خان کے نام سے کام کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ باہر. ہو سکتا ہے PTI میں بھی ایسے لوگ ہوں، لیکن 99% پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میری پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. جب خان صاحب کو لوگ ہٹا رہے تھے VONC میں تو 47% کو ہٹا رہے تھے. لیکن مجھے تب پتہ چلا کہ امریکہ والوں نے یہاں کے نالائقوں سے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی 7% پہ، وہ تو 47 پہ تھی. کچھ عرصے پہ جب الیکشن ہوا تھا وہ 77 پہ تھی، پھر 87 میں. تو انٹرنیشنل پولز دیکھتے ہیں. اب تو خان صاحب فل پاکستان سویپ کریں گے. تو نیچرلی جن کی چودراہٹ ہے، جن کی بادشاہت ہے، جن نالائقوں فارم 47 والے سارے بیٹھے ہوئے قرآن کی قسم کھا کے کیا منسٹر ہے MLA ہے، ان کو ایک سیکنڈ کو نہیں لگتا اگر خان صاحب اچھا یہ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ خان جیل سے نکلے گا ہم سے بدلہ لے گا. خان آپ کی طرح گرا ہوا آدمی نہیں ہے. وہ بہت
भारी भरकम आदात वाला आदमी, वो माफ़ करने वाला। हमें चिढ़ होती थी खान साहब से कि हर किसी को माफ़ कर देते हैं, वो बदले लेने वाला आदमी नहीं है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा पाकिस्तान में। मैडम इमरान साहब की रिहाई में दो चीज़ें और भी अहम समझी जा रही थी, एक चीफ जस्टिस की तब्दीली और दूसरा ट्रंप का सदर बनना अमेरिका का। क्या ये एक तो हम देख लिया कि चीफ जस्टिस जो शायद पीटीआई को चाहिए था वो नहीं मिला, अब ट्रंप के नजरें हैं पसंद करिए। देखिए पीटीआई को कोई चीज़ जस्टिस नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो जरदारी और उसके दरमियान ना बैठे, और शहबाज और नवाज शरीफ के। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वतन की इज़्ज़त बनाए। पीटीआई की अपनी इज़्ज़त अल्लाह ने बना दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की इज़्ज़त इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो ग्लोबल लीडर बन चुका है। फ़लस्तीन वाले होते तो इमरान खान का नाम लेते। Let me just complete, sorry. So, मैं सिर्फ ये कहने वाली थी कि कोई भी चीफ जस्टिस आए, कोई भी वतन से इंसाफ करे, दैट्स ऑल वी वांट। ट्रंप के वाले से जी, ट्रंप का ये है, देखिए ट्रंप है एक अमेरिका, वो हमेशा कहता है अमेरिका फर्स्ट। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जी अमेरिका आएगा और एक ग़ुलाम मुल्क को आज़ाद करेगा। उनकी तो ग़ुलामी में फ़ायदा है, हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, हमारा सब कुछ जो फ्री में मिल रहा बाहर वाले लोगों को, वो पागल है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आए। अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आएगी तो हमारे हाथों से आएगी। हाँ, ट्रंप का ये है कि वो जिस तरह इनकी सोच है डेमोक्रेट्स की अजीब सी हो गई है, मतलब वो जेनोसाइड को और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लबनान में बर्बादी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो फ़ायदे का सोचता है, वो फालतू लड़ाई या जंगी नहीं छेड़ता। और दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस हो, वह है वेपन्स या हथियार बेचने का। अच्छा शानदाना साहिबा, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि खान साहब 1 से 1.5 माह में बाहर आ जाएंगे। ये उन्होंने खबर दी है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। तो आपको लगता है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं 1 से 1.5 माह में? देखिए खान साहब को तो जेल जाने नहीं चाहिए थे, वो तो बेगुनाह है, उसने तो कोई कसूर नहीं है, कोई वो नहीं किया, ना कत्ल किया, ना चोरी की है, ना गद्दारी की है। आपने शायद वो खत देखा, वो 68 सेनेटर्स कांग्रेसमैन का जो किया है प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन कि जाते जाते तो अपनी इज़्ज़त रख लो, क्यों उस आदमी को आप लोगों ने जेल में बंद किया। प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, हज़ारों सियासी प्रिजनर्स हैं। अगर अमेरिका ने ये चूरन भेजना है दुनिया में कि हम डेमोक्रेसी के चैम्पियंस हैं, तो फ़ान किस खाते में बंद है। और उसमें बहुत ख़तरनाक नाम उस खत में लिया, मैं नहीं लूँगी, बट इस वक्त हालात और भी गंभीर होने वाले हैं। जहाँ तक इस बात बंदा वही है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंटरव्यू किया था, जिस आपने उसका नाम लिया, कामरान शाहिद साहब दुनिया न्यूज़ के, ये वही वाला है ना जिसने वो किया था। 4 साल पर किया। हाँ, तो ये वही वाला है। तो आई हैव नो आइडिया, लेकिन देखिए अगर फैसल ऑर्डर के पास ऐसी चुन चुन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो एंगर्स के पास भी होती है, बट हम पार्टी वालों के साथ नहीं होती है, तो क्लियरली किसी से तो वो बात कर रहे होते हैं शायद। जब उन्होंने ये बात कही तो जो फैसल वावड़ा साहब थे उन्होंने इस चीज़ को डिनाई की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख रहा था। और अच्छा, इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहब खबरें ये भी आ रही है कि जेल में खान साहब ने दाढ़ी रख ली है और काफ़ी दाढ़ी उनकी बढ़ चुकी है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? खान साहब क्या प्रॉपर अब मजहबी माइंड पहले भी थे, लेकिन अब इसकी क्या वजह हो सकती है दाढ़ी रखने की? सूफीज़्म की तरफ जा रहे हैं। सूफीज़्म पे तो वो हमेशा ही था, इसी तो सर कहते थे कि उनको सूफीज़्म से इतना शौक था कि कभी गुनहगारी को नहीं था, दुनिया में सारे थे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ये हो कि अगर वो 12 से 14 से 16 घंटे में तो फिर इंसान शेव कब करे, और इसलिए का तो सहूलत है नहीं उनको, और खाना उनको जेल का मिल रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्लली टाइम का इशू होगा। आई हैव नो आइडिया स्पेकुलेशन। मैम ये बताइएगा कि सिर्फ अल्लाह साहब आपके भाई वो कहते हैं कि उन लोगों के अंदर अभी भी हमारे गद्दार मौजूद है जिन्होंने खुद जाके MNAs उनको दिए हैं अमेंडमेंट के लिए। आपके पास कोई ऐसी खबर है? वो कौन हो सकते? वो कहते हैं वो उधर साथ बैठे हुए थे, साथ तो आपसे साथ ही मतलब उधर लोग बैठे हुए थे, तो कौन हो सकते? क्या आपने भी अपनी लोकेशन के लिए शेयर की? नहीं, मैं तो लोकेशन हमसे एक्चुअली शाम को, चलो एक मज़ाहिया बात एक बता देती हूँ, हमसे सब MNA से कहा यह गया कि हम अपने MNA से ग्रुप में अपना लोकेशन पिन डाल देते ताकि पता हो सबको कौन कहाँ बैठा है। तो मैंने मैसेज किया कि मैं तो नहीं अपना लोकेशन पिन दे सकती क्योंकि मैं 4-5 लोगों की जिम्मेवार हूँ, तो मैं कैसे अपना लोकेशन पिन दूँ जिनको सही सलामत रखना है जब तक सेशन नहीं होता ख़त्म। तो उमर अयूब से भाई का मैसेज आया कि आप लोग लोकेशन क्यों भेज रहे हैं। उनको पता भी नहीं था कि लोग फ्री में लोकेशंस भेज रहे थे। तो एनीवेज लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ के जो पिछले 5-6 बैठे हुए थे फ्रंट रोज़ में, वो तो सवाल पता नहीं होता। शेरजन मरवा साहब को मैंने भी स्टेटमेंट सुनी कि 9 लोग नहीं हैं, 9 से ज़्यादा है, लेकिन वो बात मेरे पास नामों का नहीं है कोई भी, लेकिन इतना मुझे पता है कि असेंबली का स्टाफ है वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब वीडियोज़ भी लोगों ने बनाई है। याद रखिए कि चोरों की एक आदत, चोर जब किसी को चोरी करवाता है उसकी बाकायदा वीडियो होती है। हमारा एक लॉ मिनिस्टर था KP का, उसने जब पैसे लिए थे 20 के 36 करोड़ लिए थे किसी सेनेट की सीट के लिए पीपल्स पार्टी से, उसकी बाकायदा वीडियो बना के रखी गई थी।
और जब वक्त आया तो उसको वीडियो रिलीज़ भी होगी, पैसे उसने खा लिए। ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये लोग वोट फ्री में लेते हैं या पैसे फ्री में लेते हैं। अगर 1 अरब रुपये लोगों को मिला है, किसी को 5-5 मिला है, किसी को 3-3 अरब मिला है, तो ये बड़े काम है। शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है, तो मरवत साहब को और आपकी एक वीडियो कॉपी असेंबली में आप दोनों बैठे हुए हैं, बड़ी वायरल है सब सोशल मीडिया पर। वो क्या बताना पसंद करेंगी, क्या गुफ्तगू हो रही है आप दोनों की, बड़ी खुशगवार हो रही है? मैंने जो उनको बीमारी के बाद पहली दफ़ा देखा, तो उनका चेहरा यहाँ पे ब्लॉचेस थे ब्राउन, यहाँ पे भी थे, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी है। मैं क्या क्यों रखी है इसके, मेरा लिवर ख़राब हो गया है। मैं क्या वजह क्या थी, कहते मुझे तो जेल में उन लोगों ने कुछ ना कुछ दिया, क्योंकि पहले मुझे हो गया कोविड, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, इम्यूनिटी ड्रॉप कर गई, फिर कहते मुझे लिवर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा घर का क्या खाना क्यों नहीं खाते, कहते घर में तो मुझे फिटे मुँह होती है। मैं हंसने लग गई कि वो मतलब वो जो और फिर उन्होंने कोई छोटी सी चीज़ उनके पास पड़ी हुई थी, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, तो कहते देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तोहफा भी ले लिया। मैं कहते चलो मुबारक, उनकी बीवी मेरी दोस्त है। उस पर जो बातें बन गई, मैं हैरान कि एक बंदा जेल में रह के आया, मार खा के आया, जहर उसको दिया जाए, वो हंस भी नहीं सकता, वो बात भी नहीं कर सकता। बट मैंने ये देख लिया कि जो बंदा शेर अफजल का दुश्मन है वो खान का, सिंपल सा। आखिरी सवाल है कि हर MNA की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, किसी की कमज़ोरी पैसा है, जो किसी को दबाव में लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। MNA शानदाना गुजार की कमज़ोरी की, सच बताऊँ कि फिल्मी बात बताऊँ, दोनों बताएं। फिल्मी बात तो मेरी वालदा मेरी कमज़ोरी है, लेकिन सच है कि वतन अपनी कमज़ोरी है। मेरी और कोई पासपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे वालिद भी नहीं है, मेरा भाई बाहर रहता है, मेरे जैसा बंदा कहाँ जाएगा नौकरी करने। हमने इसी मुल्क में रहना है, तो इस मुल्क के लिए लड़ रही हूँ। सेल्फिश रीज़न है, क्योंकि मुझे मुल्क चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं तोड़ना, ना कि को अफगानिस्तान को देना है और बलूचिस्तान उधर दे दो, मुझे 1 साल में पाकिस्तान चाहिए। इमरान खान की रिहाई पर कैसा इस्तकबाल देख रही हैं, अब क्या तारीख पे ऐसा इस्तकबाल हुआ होगा जो कि आप खान साहब का देख रही हैं आने वाले दिनों में? हमने तो ख़त्म शुरू कर दी है, हमारे MPA हैं फजल इलाही साहब, इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी हम आएंगे, सवाबी भी आएंगे, हम सारे शहरों में ख़त्म करें, बिकॉज वी रियलाइज़ वाहिद क़ुव्वत अल्लाह की है। हमें अपनी क़ुव्वत का अंदाज़ा है, आपने देख लिया संजानी में भी, सवाबी में भी, पूरा पाकिस्तान पहुँच गया था। हमें निकलना होगा, हम किसी लीडरशिप से नहीं पूछेंगे, हम खुद निकलेंगे, वो हमारा फ़ैसला होगा। अब शुक्र जलीमा भी आ जाएंगी, तो वो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा जब भाई से मिलेंगी बता भी देंगी। लेकिन बॉटम लाइन है इसके, हमने अमन से रहना है, लेकिन खान को निकालना, ये हमारी एक क्या कहते हैं नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। वी वांट हिम आउट, उसने कोई गुनाह नहीं। बुशरा साहिबा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, वो तो सीधी चली गई पेशावर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले दोबारा एहतजाज की कॉल दी है, और देखने में ये आता है कि इस्लामाबाद की क़यादत जो है वो इस्लामाबाद के वर्कर्स की सपोर्ट के लिए नहीं निकलती, जो लोकल क़यादत है, जैसे शोएब शाहीन साहब हैं, आमिर मुगल साहब हैं, दूसरे गिरामी हजरात हैं, वो इस एहतजाज में नहीं आते। तो क्या एक बार फिर एहतजाज सियासी लीडरान के बगैर होगा, या फिर आवाम ही अपने आप को मनवाने के लिए फिर सड़कों पर निकलेगी? देखिए जी, मेरी तो ठीक ठाक लड़ाई भी हुई थी अपने सीनियर्स से, जब ये अमेंडमेंट्स के लिए हमें कह रहे थे ना कि आप छुप जाएं, तो मुझे इस बात पे तब चढ़ी कि हम क्यों छुपे, हमारे हल्के वाले बेचारे निकले हुए हैं। और दूसरी बात यह कि मेरे जैसा बंदा अगर आप मुझको जेल में डालेंगे, मैं क्या वोट बदलूँगी? कभी भी नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट की गौहर भाई से, सलमान भाई से, नसर कैसर से, प्लीज़ हमें इजाज़त दें कि हम लियाकत बाग भी पहुँचें और हमें डी चौक में आने दें, हम कभी भी खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने ये डांटा कि देखिए मैम, ये सिलेक्टिव बात नहीं होती है, हमने सबको देखना होता है, सब MNAs को ऑर्डर है कि इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई ना नज़र आए। अब मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा उनका फैसला था, मेरा गलत था, मैं लड़ रही थी, मैं जज्बाती हो रही थी क्योंकि मेरे हल्के वाले नाराज़ थे। अगर मैं इस्लामाबाद में नज़र आती, प्रिजम्पशन यही होनी थी कि मैंने भी 3, 5, 8 अरब लेके खान को बेच दिया, खुदा ना खास्ता। सो ये उनका फैसला ठीक ही था। मैं आपको बात बताऊँ, बहुत सारे लोग आते हैं, MPAs आते हैं, नामालूम MNAs, मतलब MNAs और सेनेटर्स को तो रोक दिया था ना, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन देखिए PTI की मीडिया फेसेस मुश्किल से 20 या 30 होंगे, तो जब हम MNAs नहीं निकलते, या शेर अली नहीं है, या शहरियार नहीं है, या शेर अफजल नहीं है, या आमिर डोगर नहीं है, मतलब जो मेन बोलने वाले चेहरे में जब वो नहीं नजर आएंगे आपको, तो प्रिजम्पशन ये होती है कि लीडर नहीं है। लीडर्स होते हैं, उनको कोई जानता नहीं है सिवाय अपने हाल के लिए। वो अमेरिका गए थे अपनी बेटी के साथ उनको ड्रॉप करने के लिए, पिछले साल जब उसकी एडमिशन हो रही थी तो तब शहरियार जेल में था, अब वो गया उसको बाद ड्रॉप करने, सेट करने। लेकिन मैं उनके घर की ज़ाती बातें नहीं बता सकती, बस इंशाल्लाह जल्दी आ तो जाए। जो एहतजाज की कॉल दी है अली अमीन गंडापुर ने, क्या इस बार भी सिर्फ आवाम के सर पे ही होगी, या जो लोकल कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, क्योंकि तीनों हल्के इस्लामाबाद के आप लोग हराए गए या हारे जो भी है, तो क्या वो लोकल कहते हैं जो इलेक्शन हारी थी, क्या वो उनका हक नहीं था कि वो एहतजाज में शामिल होते? और अली अमीन गंडापुर साहब की जो कॉल है दोबारा एहतजाज की, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं तारीख का ऐलान बाद में करूँगा, इस हवाले से क्या कहेंगे?
देखिए, सबको होना चाहिए जो आ सके, लेकिन मैं कभी भी किसी पे बदनीयती का शक नहीं करती जब तक वो प्रूफ ना हो जाए। इस वक्त मतलब मैं नहीं आ रही थी और मुझे सब डांट रहे थे, मेरी वालदा मुझसे नाराज़ थी कि जाओ, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनका जब पार्टी के लीडर्स नहीं मान रहे हैं, हम क्या करें? सो मेरी प्रजम्पशन ये हमेशा होती है कि हर इंसान की नीयत साफ़ है, अमल में खोट हो सकती है, लेकिन अगर मैं लोगों की नीयत पे भी शक कर दूँ तो मैं भी लोगों की तरह हूँ जो यादव राजा टाइप जो लोगों पे शक शकूक करते गलत बात करते हैं। थैंक यू।